First of all, we will discuss in our first lecture about force, because force is a term that is related with the motion of the objects. So in the physics, fundamental of physics, and that subject is basically physics, fundamental of physics and fluid mechanics. So there is a two portion in your syllabus and the contents of the fluid mechanics. One portion is belong to the fundamental of physics and second portion is belong to the fluid mechanics, and both portions are important for your degree, for your courses, for your graduations. So first of all, we will discuss the first 3 or 4 topics of your outline. And the first topic of your outline is the description of the motion. Whenever we will discuss the objects are moving, we will discuss about the forces with which these objects are moving. So let's start with the description of the forces. बेसिकली हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मैकेनिक्स का हमारे जहन में जिक्र आता है कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी डिस्कस अबाउट द study about the motion and effects on the moving objects. So and also the effects of the motion on the another objects. So there are basic two types of the mechanics. One is the kinematics and second is the dynamics. And furthermore, when we will discuss in detail, then we will divide it in classical mechanics and then relativistic mechanics and then quantum mechanics. But here we will only discuss about the dynamics, that is the second type of the basic branch of the mechanics. And because in the dynamics we will discuss about the effect of the force on object. So that is very important, because when we discuss the motion of the object, effects of the forces are very important to discuss the moving motion of the objects, and are the terms that are related to the moving objects. So due to this reason we will start our lecture with the terms, that is the force. अब force क्या है? Force आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से आपने पढ़ा होगा force के बारे में कि force को अगर हम इसकी definition के हिसाब से देखें, इसके meaning के हिसाब से देखें, तो then what is force? Force is basically push or pull the object is known as force. इसको हम इसका synonyms use करें तो then it is basically the to compel the body. The force, the energy that compel the body, that is basically force. ऐसा source जो basically किसी भी body की state को change कर दे, उसको हम force कहते हैं. तो physics के अंदर force जो है बहुत important है, बहुत important है, because energy, किसी body के अंदर energy है तो energy जब utilize करता है किसी another object के ऊपर, तो उसके लिए force का होना लाजमी है. इसलिए हम लोग जब भी मोशन को बात करेंगे तो हम लोग बेसिकली फोर्स की बात करेंगे. तो क्योंकि हमारे पास डायनामिक मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो डायनामिक्स के अंदर हम लोग फोर्सेस का जिक्र करते हैं. अब फोर्स को डिफाइन सबसे पहले न्यूटन से पहले बेसिकली गैलीलियो ने किया, लेकिन डेफिनेशन प्रॉपरली बेसिकली न्यूटन ने दी. और जो डेफिनेशन ऑफ द फोर्स है वो मिलती है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से. The first law of Newton define the force, and second law of Newton. Then after the first law of Newton, we discuss the second law of Newton, and the second law of Newton give us the magnitude of the force. And these two laws are very important that are used in our daily life. So then we will divide the force in the different types like contact force, non-contact force, frictional force, gravitational force, magnetic force, electric force, twisting force, so linear force, angular force. There are so many types of the forces that can be used in our daily life. So let's start its slideshow, so then we will able to understand it. तो हम लोग, मैंने कुछ स्लाइड्स आपके सामने देखे. हमारे फर्स्ट एक पर्सन है जो किसी चेयर बैठा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशन फोर्स है. इसने अपने हाथ में कुछ चीज़ पकड़ी हुई है, उसने भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की हुई है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की मखसूस स्टेट है उस फोर्स के लगने के बाद. तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली इसने भी फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसके ऊपर खुद भी बेसिकली डाउनवर्ड वेट की फोर्स अप्लाई हो रही है. तो वेट इज आल्सो द बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स, प्रेशर इज आल्सो द टाइप ऑफ फोर्स. सो नेक्स्ट वन, gravitational and gravity. What is gravity? All these are
topics that are related to the basically force, and you will read all these data in these slides, and it is very easy to understand this. So due to this reason, I will move for further, so to discuss the difficult thing that cannot be understood easily. So these are all the topics that are related to the forces, balance and unbalanced forces. We can take the examples here where forces are applying, and the net, we can find the net force. Like here is the box. On a box, there are two person are applying the force, and both persons are applying the forces in same direction. So the net force would be added. So the resultant force would be large. So in this reason, the box will be moved in the rightward direction. So in another case, we can discuss the push and pull. The object is also basically the force. Just like that, the earth is always pull the objects towards center. So that is that means it applies the force on a object. So these are all the terms related to the force. It can be measured with the help of scales and spring balance. So next one is measuring force. How can we measure the force in terms of Newton? That is SI unit of the force. This is all about the net force that I have discussed already. So this is the example of the force magnitude, and this is also the example of the net force. So all these terms are belonging to the examples of the balanced and the net forces. So here we can discuss the another example of a net force, and all these are examples related to the net forces. So moving forward, we can discuss that there is a very important force that can be called frictional force. It has very important factors in our daily life, like whenever the object moves. So when we uh, remove the energy on objects it stops itself, because there is another force which is produced when the surface of the object and the surface of the any other like ground or any other objects contact with each other. That force is produced. Then the force is known as frictional force. So which is very important. Due to friction we can stand, due to friction we can move on the surface of earth, due to friction we can insert the nail in the wall. And all these are the basically benefits, advantages of the फ्रिक्शनल फोर्सेस. इसी तरीके से हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. जिस तरह हमारे पास एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे कि एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम मैच बॉक्स में मैच स्टिक्स को जो कि बंद कर सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. ऑल दीज आर एग्जांपल्स बिलोंग टू द फ्रिक्शंस. सो जहाँ जहाँ हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं हर चीज़ के, वहाँ उसके नुकसान भी होते हैं. तो देयर इज आल्सो एन डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन. So what then we will do, we will decrease the effect of the frictional forces there. So by using the lubricants, by using the oil, by using the grease or mobile oil, we can reduce the friction. So this is also the this is the basically disadvantage, but we can tackle it with the by using the other materials. So next one is, let's admit all. So next one is the, here is a question, very important question. कि हमारे पास कहता है कि अगर ऐसा का पॉसिबल है कि अगर हमारे पास, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. कैसा पॉसिबल है? अभी आ रही है बेटा? आपका नेट का इशू होगा, अदरवाइज आवाज चली जाएगी सब तक. कैसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक बोतल हो, लाइक हमारे पास 1 लीटर की बोतल है और उसके अंदर बेटा आपका नेट का इशू है. अपने नेट को चेक करें, बाकी सबको आवाज़ जा रही है. तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बोतल है और बोतल को हमने राइस से फिल किया है, और अगर आपसे क्वेश्चन ये किया हुआ है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको किसी पेंसिल से उठा सकें, तो यस इट इज़ पॉसिबल. और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इज़ अ बेस बिहाइंड दैट इज़ अ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, जिसकी वजह से हम इसमें एग्जांपल में देखिए, मैंने एक डायग्राम आपसे शेयर की हुई है. इसमें क्या है कि दोनों हमारे पास ये राइस के पीस दिखाए हुए हैं आपको, और इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है. और जैसे हम इसको पेंसिल को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, तो ये इस जो स्पेस के दरमियान फोर्सली हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और इसको फिर इंसर्ट करते जाते हैं. एक वक्त आता है कि काफ़ी इंसर्टेड हो जाती है और थोड़ा छोटा सा पार्ट इसका बाहर आ जाता है. तो होता क्या है कि जो राइस के पीसेस के दरमियान जो
फ्रिक्शनल इफेक्ट है, और साथ साथ राइस के पीसेस और पेंसिल के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये फिर्म हो जाता है, फिक्स हो जाती है पेंसिल यहाँ। तो अब ये इसका मतलब है पेंसिल इस राइस का, उस बोतल का हिस्सा बन गई है। अगर आप पेंसिल को उठाओगे तो इजीली आप बोतल को उठा सकते हो। दिस इज आल्सो एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन इफेक्ट्स. So there are all the four types of the frictions: static, sliding, rolling, and the fluid friction. You will read it by yourself. All these are simple notations or topics which can be read easily. So gravity, इसके अलावा हमारे पास ग्रेविटी है, ये सारे में फोर्सेस हैं, वेट है, और एग्जांपल्स हमारे पास जो हम ली जा सकती हैं फोर्सेस की। ये सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा। तो आपने ये और ये क्वेश्चन जो है खुद आपने इस पर सोचना है, और ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, तो फिर आपने मुझे इसकी डिटेल बतानी है जो आपने को समझ नहीं आई। खैर, नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट हम मूव करेंगे फोर्स के बाद। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से उसमें मोशन पैदा होती है, उसमें वेलोसिटी आती है। और जब कोई बॉडी जिसका कुछ मैस हो और साथ साथ उसमें वेलोसिटी पैदा हो जाए, तो इट मीन्स द बॉडी हैज़ द क्वालिटी ऑफ द मोशन, एंड दैट क्वालिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। तो देयर इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू द फोर्स। तो फोर्स रिलेट करती है हमेशा जो है मोमेंटम। तो इसलिए नेक्स्ट इसके साथ जो टॉपिक है आपका है वो मोमेंटम है। So what is momentum basically? Momentum is the quality of the moving object is called momentum. So here we can take the examples of the like the collision of the two balls. Whenever the one ball will collide with the another ball, it will transfer its momentum to the another ball. So in both cases, the momentum of the both objects will change, but the momentum of the system does not change. So here we can take example of the bicycling, and in the case of bicycling, when we apply the force on the pedal of the cycles, and what will we do? We are basically applying the force on a pedal, and that produce the motion in the cycles, and that rotate the wheels of the bicycles. So it means the we are going to apply the force, and that force is caused to move the object. It means that force is used to move, to create the momentum, to form the momentum. So another next one is हमारे पास ये एग्जांपल ली जा सकती है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन है एटसेट्रा। ये आप स्लाइड्स को उसको रीड कर लीजिएगा। जब भी हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं तो हम लोग उसको मेजर कैसे करेंगे, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। तो इसको मेजर करने के लिए आप लोग, हम जानते हैं कि मैस और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि अगर मोमेंटम जो है वो डिपेंड किस पे करता है, कि फाइंड करना हो, तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। So one of its quantity when increase, the momentum will increase. If both quantities will increase, momentum will also increase. If both quantity will decrease, momentum will also decrease. So we can change the momentum by changing the mass of the object or velocity of the object. Next one, all the terms are related to the momentum. So you will read it, or then will tell me then how much have you understood this. So you can read. Next one is the momentum objects and the velocity of the objects offer, etc. Next one is example of the basically problem of the momentum, and this is another numerical belong to the momentum. So this is also the effects and the change in how can we change the momentum of the object. So there is a quantities, there is a concept, then how can we change the momentum. So next one is a look back and check does your answer make sense or etc. or not. So next one is the practice momentum problems. You will do it by yourself. So next one is the conservation of momentum. So whenever we will apply the force on object, it will moves, and it means we are going to create the momentum. And when the moving object strike with another object, then it will transfer its momentum. So according to law of conservation of momentum, the momentum of the system will remain conserved whenever the objects will apply its momentum to another objects, and there is a loss of momentum in the one object, and there is a gain of momentum with the same amount another object.
provided that no external force acting on object. Like we have the gas molecules that have the constant temperature, and we have enclosed that gas in a container. So when at that stage, whenever the temperature is constant, there is no external force that is acting on a container on the directly on the molecules. So this system is known as the isolated system. उसको हम कह सकते हैं ये isolated system है, उसमें हमेशा momentum जो रहेगा कंजर्व रहेगा. नेक्स्ट सारी स्लाइड जो है ये बिलोंग करती हैं बेसिकली मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से, और सारी एग्जांपल्स हैं कि कैसे जब ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो वो मोमेंटम ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट वन इज इसके बाद आप लोगों का टॉपिक है कि हीट और टेम्परेचर के बारे में. तो इसलिए नेक्स्ट जो है हम लोग हीट के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ हीट. हीट जो है वो फूड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आप जानते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कि हीट की मदद से बेसिकली हम फूड्स को प्रिजर्व करते हैं, और हीट की मदद से बेसिकली हम लोग जितने भी जर्म्स हैं उसको किल करते हैं, और हीट की वजह से एक मखसूस टेम्परेचर अटेन करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स का, जिसकी वजह से वो उसकी प्रिजर्वेशन की क्वालिटी और उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है. सो स्लाइड शो. तो व्हाट इज़ हीट देन? हीट क्या है? हीट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम. हम किसी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी लें तो उसको हम हीट कहते हैं. जो सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे होते हैं बेसिकली वो बेसिकली हीट है. और जब वो उसको एनर्जी दे देते हैं, कोई भी मैटर है लाइक गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो उस वक्त जब वो एनर्जी लेके डिवीजन हो जाती है उसकी एनर्जी की तमाम मॉलिक्यूल्स में, तो उसी एनर्जी को फिर हम लोग कंप्लीटली या टोटल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितनी एनर्जी देते हैं लाजमी नहीं उस सिस्टम में सारी वो रिजाइड करे, वो डिवाइड हो जाती है. इसलिए फिर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट हम कहते हैं बेसिकली वो टेम्परेचर है. तो ये टेम्परेचर और हीट जो है ये दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं. अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे. और हीट की एक प्रॉपर्टी है कि वो हवा हमेशा हाई से लो फ्लो करती है. इसी प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज़ करते हैं बहुत सी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर. जैसे एग्जांपल हमारे सामने नज़र आ रही है तस्वीर के अंदर कि आप लोग एक आपके पास केटल है, हॉट केटल है, अगर उसको टच करें तो आपको कोल्ड हॉट महसूस होती है. और सिमिलरली हमारे पास एक आइस क्यूब्स हैं, 2 आइस क्यूब्स हैं, उसको अपने हाथ में रखो तो वो आपको कोल्ड फील होंगे. एक्चुअली इन दोनों को इसमें हमारे पास जो हॉट और कोल्ड की जो कंडीशन है कि क्यों फील हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग हॉट केटल को टच करते हैं तो हीट जो है वो हॉट केटल से हमारे हाथों की तरफ मूव करती है, और हमारे हाथों का टेम्परेचर बढ़ जाता है. इस वजह से हमें फील होता है, हमारी स्किन फील करती है, सेंस करती है कि हमारा टेम्परेचर हमें ज़्यादा फील हुआ और हमें ज़्यादा फील हो रहा होता है. और इसी तरीके से जब आइस क्यूब को अपने हाथ में रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें हमें कोल्ड फील होते हैं. इसकी रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में से हीट जो है वो आइस क्यूब में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी की हमारे हैंड की सरफेस है वो उसकी सेंसेशन ये बता रही होती है हमें कि उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है. इसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हीट के अंदर जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है. और इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के कॉन्सेप्ट की वजह से थर्मल एक्विलिब्रियम क्रिएट होता है. और जब थर्मल एक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है उस वक्त फिर मज़ीद जो हीट जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या सराउंडिंग में फ्लो नहीं करती. इसकी शॉर्ट्स एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक कप ऑफ टी है, और जब आप उसको ओपन सिस्टम में लेकर आते हैं तो वो जो कप के अंदर जो टी है वो एक सिस्टम है जो हॉट होता है, और उसकी ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है. थोड़ी देर बाद वो जो कप के अंदर टी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर कम होना शुरू होता है. वजह क्या है कि कप में से जो टी में से जो हीट है वो बाहर सराउंडिंग में जाना शुरू हो जाती है, और वो तब तक जाती रहेगी जब तक जो टी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो इसे कहते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम, कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स एक इन कॉन्टैक्ट हों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कैसे कह सकते हैं, तो दोनों सूरतों में हमारे पास टेम्परेचर जो है तब तक फ्लो करता रहता है, हीट तब तक फ्लो करती रहती है जब तक दोनों सिस्टम्स का दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए.
तो थर्मल एक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। और जैसे ही इंसान की डेथ होती है तो इसमें हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से सेम हो जाता है। और अब जब इंसान लाइव होता है उसमें हमारे पास हम जानते हैं कि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर के ऊपर आप जानते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बहुत से रिएक्शंस के लिए। तो इसलिए इन टेम्परेचर्स को का होना और इस हीट का होना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, इवन के फूड साइंस के अंदर बेसिकली फेवरेबल है। तो ये बाकी सारी स्लाइड्स जो हैं ये बेसिकली हीट से बिलोंग करती हैं और टेम्परेचर से बिलोंग करती हैं। एग्जांपल्स है कुछ जो आप लोग स्टडी करोगे टेम्परेचर्स के बारे में, और जस्ट लाइक दिस कि मैं सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। ये स्लाइड्स हैं कुछ और इसकी मेजरमेंट है और कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये थर्मल एक्विलिब्रियम के बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं सारी, तो आप इसको रीड कीजिएगा। ऑल दीज आर बिलोंग बेसिकली टू द ये सारी कुछ मेजरमेंट्स के बेसिकली स्लाइड्स हैं कि हम उसको कैसे मेजर करते हैं और हम लोग कौन से लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मरकरी एक मेटल है, उसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली मेजरमेंट के लिए। और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और जो कि नॉलेज के लिए हैं। ये स्लाइड जो दो तीन स्लाइड लास्ट में जो बता रहा हूँ, ये डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये फॉर सेक ऑफ नॉलेज है। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने इसको डिस्कस करना है खुद। सो नेक्स्ट वन इज़ इसके बाद जो आपके आउटलाइन का टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। सो लेट डिस्कस द अबाउट द एनर्जी। सो सबसे पहले हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। The next one is energy. So ये आपके सामने बल्ब नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये विंड एनर्जी है, हमारे पास वाटर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सोलर पैनल्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जीज है, और हमारे पास सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जीज है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। किसी भी हर दुनिया में हर ऑब्जेक्ट जो अल्लाह ने बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी छुपी होती है। और सबसे जो बेसिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं आज। और उसकी दो टाइप्स हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी। सो इसकी डेफिनेशन आ गई आपके सामने। मैकेनिकल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट्स की मोशन की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से होती है, मैकेनिक्स की वजह से होती है, इसलिए उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है नेक्स्ट वन। इसमें दो टाइप्स हैं हमारे पास जस्ट अ मिनट, पहले मैं इसको अनम्यूट कर लूँ इस्तेमाल को। ये ऑप्शन यार नहीं आ रहा जिसमें मैं म्यूट कर सकता हूँ। चलिए मैडम यहाँ मीटिंग इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग जो है मैं इंशाल्लाह फिर अभी स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को जो है लिंक भेजता हूँ। दैट्स इट।